Then today we start the first topic that study these five six topics. That the topics are the evolution of Indian society and caste system and its dynamics. Who are the OBCs and reservation system in India, untouchability, tribes and family and marriages system in India. Like we all know that in Sharia rule their marriages and their family system are different. In Hindu traditions they are different, in Christian they are different. So we all study the tribes in India. There are so many tribes. Untouchability, the stigma of untouchability is very brutal and very bad for Indian society. Who are the OBCs and their reservation system? We all know that OBC reservation cat in 90s, in 90s, 1990s, in this that decade, and we all know about the caste system in and the dynamics in India, Indian society, evolution of Indian society. Okay, now we first read the society, and society is a web of the social relationship. Society is a web of a social relationship, division of labor, the separation of a work process into a member of a task, with each task performed by a separate person or a group of person. This is called division of labor. because because of division of labor creates interdependence. In order to maintain social relationship, society creates elaborate rules and regulations which must be followed by the member of society. If members start to break these rules, there will be chaos and conflict. New member of society learn rules and regulations from their process through process of socialization. New members of society learn rules and regulation through process of socialization. In order to socialize the member, in order in order to In order to socialize the members with rules and regulations, society creates social institutions. Example: family, marriage, state, religion, school, college. With the primarily two tasks of social institutions. First task, there are two tasks, but there are three things. Okay, fine. There are two tasks. The socialized member about rules, the primary social instruction given by family, and secondary social instructions given by the schools. After that ensure member follow the rules and regulations. Member of society can demand change in rules and regulations. This lead to negotiation between old rules and new rules. If new rules are accepted, the social reformers in the past social social reformers in the past accepted by the social reformers in the past, who are the change agents of the society. In modern time, NGOs have been acting change agent.
NGO, NGO, non-governmental organizations. We all know that the Naz Foundation is famous for LGBT rights, and some other like Muslim women bank, Muslim women bachao andolan, triple talaq. And what are their values? Values help us for decide what is wrong and what is right. Values help us define our define over define over preferences. जो हमारी वैल्यूज़ होती है वो क्या करती है, डिफाइन करती है हमारी, हेल्प अस डिफाइन ओवर प्रेफरेंसेस, हमारी प्रेफरेंसेस को क्या करती है, ये एस्टेब्लिश करती है. After that, the values are the guiding principle of life. Values are the guiding principle of life. They are the relative in nature, the change in society. Culture derived from values. Culture derived from values. When values change, when values change, then culture change. Of course, जब वैल्यूज बदलती है तो कल्चर उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है हमारा. द कल्चर डिराइव फ्रॉम वैल्यूज. जो कल्चर है वो क्या होता है, किससे ड्राइव होता है, वैल्यूज से ड्राइव होता है. जब वैल्यूज बदलती है तो उसके अकॉर्डिंग कल्चर भी चेंज हो जाता है. जैसे कि मान लेते कि हमारी वैल्यूज़ के अंदर पहले मान लो कि हमारी वैल्यूज़ के अंदर नहीं था कि वुमेन एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, लेकिन जैसे हमारी वैल्यूज चेंज हुई तो फिर हमारे कल्चर के अंदर भी ये वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट आ गया उसके अंदर. नाउ वी टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी एंड वर्ल्ड वेस्टर्न सोसाइटी, both we talk about both what type of societies here. Indian society is type of the collective society, then joint families culture, and Western society is that capitalist societies, and they are nuclear societies. First we know about that why Indian society adopt this type of culture, joint family culture. We all know that India is in a uh, Indian society is a feudal society, and our economy is the most of the peoples of our country are dependent on the agriculture. We all know that in a farm, more people's work, and when they are belongs to one family, then they are interdependent, and joint family culture outcome comes out. And in the Western society, there the farming only, I think 4 to 5% peoples are farmer, and they have the so much farmland, and other peoples are the work in the capitalist things like factories, companies, all these things. So they peoples live in the nuclear families. Culture is way of life. Then now we talk about culture. Culture is a way of life, that is how people do thing in a particular society. Culture is a way of life, that is how people do thing in a particular society. Component of culture. The component of the culture is like are the dress, food, language, art, culture, include dance, music, paintings, festival, and the literature, and many other things. They are the component of culture. The customs and traditions, commonly the accepted manner of the behaving or doing something in particular society. Custom customs customs and traditions,
commonly accepted manner of behaving or doing something in particular society. They are, we all know that they are customs and our traditions, commonly accepted by the everyone, individual, everyone. People accept very firmly, and manner of behaving, and they behave like in that manner. when custom when customs are part of generation, this called tradition. जब कोई कस्टम क्या करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पार्ट बन जाता है, और पार्ट ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, जब कस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रेडिशन, परंपरा बन जाता है। द सोर्स ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन इज रिलीजियन, धर्म इसका सबसे बड़ा सोर्स है। Every religion have their own set of customs which have been codified as customary laws, personal laws. Religion and science. The religion, those societies are belongs the based on the religion, they are called traditional society, and that societies are based on their values are based on the science, they called themselves a modern society. Like Indian society is traditional society, and the European or Western societies are called modern society. Modern society, when society run by scientific tempo, जब कोई सोसाइटी साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक सोच से चलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कल्चर कॉन्टेक्ट। कल्चर कॉन्टेक्ट का मतलब है कि जब दो कल्चर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। जैसे कि पहला आता है असिमुलेशन, बोलते हैं इसको असिमुलेशन, C1 + C2, यानी कि C1 एक कल्चर और C2 एक कल्चर है। ये मान लेते हैं कि हिंदुइज्म है या इस्लाम और ये हिंदुइज्म है। अब क्या होगा कि ऐसा मान लेते हैं कि कोई सोसाइटी है, जैसे कि असिमुलेशन में क्या होता है कि जो सोसाइटी बड़ी होती है, जो बड़ी संख्या में होती है, वो क्या करती है कि छोटी वाली सोसाइटी के को खुद के अंदर क्या कर देती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है उसको। एंड C2 कम्प्लीटली मर्ज, और C2 क्या कर जाती है कि C1 के अंदर कम्प्लीटली मर्ज हो जाती है, जो छोटी सोसाइटी हो, यानी कि जो पीपल्स कम होते हैं। असिमुलेशन का मतलब होता है कि एक बड़ी सोसाइटी के अंदर एक छोटी सोसाइटी मर्ज हो गई, बड़ी सोसाइटी द्वारा छोटी सोसाइटी को एब्जॉर्ब कर लिया गया। विद C1 लिविंग देयर ओन कल्चर और completely merge with C1, C2 completely merge with C1, और C2 क्या करती है कि लिविंग देयर ओवन कल्चर, और C2 ने अपने कल्चर को छोड़ दिया और उसने C1 के कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। देखते हैं कहाँ हुआ ऐसा, बहुत जगह हुआ है। जब आर्यन इन्वेजन हुआ था तब ऐसा हुआ था, यहाँ के जैसे नॉर्थ में रहने वाले लोगों ने क्या करते धीरे धीरे अपने कल्चर को छोड़ दिया और उन्होंने आर्यन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। और इसी प्रकार से देखते हैं कि हाँ, ये अभी आपने देखा नहीं होगा, इसमें नीचे लिखा है कि C1 absorbs C2 and C2 completely merged with C1 and C2 living their own culture. Acculturation का मतलब पता है क्या होता है? Acculturation का मतलब होता है कि दो सोसाइटियाँ वो क्या करती है कि अपनी वैल्यूज़ का क्या करती है, एक दूसरे के अंदर उनका आदान प्रदान होता है। यानी कि ये C1 कल्चर C2 को अपनी कुछ वैल्यूज़, C1 C2 से कुछ उनकी वैल्यूज़ को ले लेता है, अच्छी बातों को ले लेता है, ये इसकी अच्छी या बुरी बातों को ऐसे कुछ ले लेते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं, तो वो होता है एक्लचरेशन। दिस इंक्रीज डाइवर्सिटी, और ये क्या करता है कि
ये कल्चर कॉन्टेक्ट क्या करता है कि डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है, ये कल्चर को और ज़्यादा डाइवर्स बनाता है। और इसे बोलते हैं सैलेड सैलेड बाउल, और इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन अप्रोच। ये सबसे अच्छी अप्रोच है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन अप्रोच। उसके बाद हम लास्ट की पढ़ते हैं। लास्ट वाला कल्चर क्या है, इसमें लिखा है सेपरेशन। जैसे कि ये C1 और C2 है, इसमें क्या कर दिया कि C1 ने C2 के को रिजेक्ट कर दिया और C2 ने C1 को रिजेक्ट कर दिया। ईच ग्रुप फील दैर कल्चर सुपीरियर टू अदर, और हर एक फील कर रहा है कि उसका कल्चर दूसरे से सुपीरियर है। C1 C2 को रिजेक्ट कर रहा है, C2 C1 को रिजेक्ट कर रहा है। C1 समझ रहा है कि वो सुपीरियर है C2 से, C2 समझ रहा है वो C1 से सुपीरियर है। और इसमें क्या होगा, उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और इसे बोलते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि श्रीलंका में हो रहा है अभी। एथनिक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट बोलना चाहिए, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कैसे बोल सकते हैं, एथनिक तो अलग नहीं आता क्या। चलो इसके बारे में सबसे अच्छे से पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। श्रीलंका में हो रहा है, श्रीलंका में जो कि श्रीलंका के अंदर जो नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में जो रहते हैं, जो तमिल लैंग्वेज वाले लोग हैं और बाकी सिंहली वाले लोग हैं, उनके बीच में क्या होता है कि लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। इसी प्रकार से सर्ब और बोस्निया के लोगों के अंदर भी, सर्बिया और बोस्निया के लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। इन सब के बारे में बात करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। हम बात करते हैं इवोल्यूशन, इंडियन सोसाइटी के इवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट है हिंदू वैल्यूज सिस्टम, सेकंड है इस्लामिक वैल्यूज सिस्टम, और थर्ड है मॉडर्न वैल्यू सिस्टम। मॉडर्न वैल्यू सिस्टम, तो इसमें कहता है कि हिंदू वैल्यू सिस्टम के अंदर इवोल्यूशन होता है ना, मतलब खुद ही के अंदर एक कोई धर्म है, उसके अंदर खुद के अंदर इवोल्यूशन होना, कोई बदलाव आना, परिवर्तन आना, कुछ अच्छे बदलाव, कुछ बुरे बदलाव, जो भी जैसे भी बदलाव है, इवोल्यूशन ही तो है धरती पर सबसे बेहतरीन, मतलब बेहतरीन या कुछ भी मानो, जो भी है लगातार इवोल्यूशन चलता रहता है। तो इसके बारे में बात हो रही है कि इवोल्यूशन क्या है। तो हिंदू वैल्यू सिस्टम के अंदर क्या हुआ है, हिंदू वैल्यू सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें सबसे पहले आते कहते हैं कि जो ऋग्वेदिक काल था, जो आर्यंस का काल था, उसमें क्या होता है कि वर्ण थ्योरी देते हैं वो लोग। ऋग्वेदिक काल में वर्ण थ्योरी होती है। फिर कास्ट स्टार्ट कम्स फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल के अंदर लेटर वैदिक पीरियड में क्या आता है, कास्ट सिस्टम स्टार्ट होता है। और कास्ट सिस्टम रीच पीक इन गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड के दौरान जो कास्ट सिस्टम था वो अपनी पीक पर होता है, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। हमें पता है गुप्ता पीरियड का, पता है गुप्ता पीरियड ये है जो तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक के आसपास में गुप्ता पीरियड रहता है, लगभग 300 साल तक, या थोड़ा थोड़ा मान सकते हैं, बाकी हर जगह नहीं रहता है। तो इसमें मानते हैं ऐसा ही कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें आते हैं दलित, आते हैं शूद्र, आते हैं वैश्य, आते हैं क्षत्रिय, आते हैं ब्राह्मण्स आते हैं। और इसमें माना जाता है कि ब्राह्मण्स आर बोर्न फ्रॉम बर्माज माउथ एंड क्षत्रियज आर born from the Burma's from their shoulders, and Vaishyas are found from their thigh, or Sudras from feet. Dalits are different, they are does not consider in that system. The इसका मतलब ये कि ब्राह्मण से ब्रह्मा की मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, और वैश्य जांघों से, और शूद्र पैरों से, और इसके बाद में एक और वर्ण बनता है वो दलित। अब हम आगे बात करते हैं, इस्लामिक वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस्लामिक वैल्यूज के बारे में बात करते हैं तो लिखते हैं कि 1000 AD के अंदर महमूद गजनवी जो कि कहते हैं कि उसने 16 या 17 बार भारत पर अटैक किया था, उसका कहते हैं कि 16वां अटैक था, वो था सोमनाथ के मंदिर पर था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। उसमें उसने भारत की अत्यधिक धन संपदा को लूटा था। इसलिए कहते हैं कि इससे पहले भी इस्लामिक इन्विजन हो चुका था, जो कि उसे बोलते हैं 7वीं शताब्दी के अंदर ना मोहम्मद बिन कासिम आता है, ठीक है।
लेकिन वो होता है अरब इन्वेजन। और महमूद गजनवी ये सभी होती है, क्या होता है, तुर्किश इन्वेजन होते हैं, ये तुर्क इन्वेजन। ये सभी तुर्क जो मध्य सेंट्रल एशिया की तुर्क जनजाति से थे, तर्कोमान जनजाति से बिलोंग करते थे, टर्कोमान ट्राइब से। और 1193 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर विजय प्राप्त कर ली। उसने यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हराया और जीत गया। कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इक्वलिटी है, वहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, नो कास्ट सिस्टम इन इस्लाम। पर जो इस्लाम भारत में आया और इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन सिस्टम, और इस्लाम का जो इस्लामाइजेशन हुआ इंडियन सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर उसके बीच में कास्ट बन गई। बिल्कुल ऐसा होता ही है। हमने भी पहले कुछ समय 2 साल पहले पेंडेमिक को झेला है, साल भर पहले, साल 2 साल पहले हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंडेमिक आई थी। उसमें हमने देखा था कि एक बीमार आदमी दूसरे को भी बीमार कर देता है, स्वस्थ आदमी को। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था। इस्लाम के अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन ये लोग जब इंडियन सोसाइटी के संपर्क में आए तो इनमें भी ये जो बन गया, क्या बन गया, कास्ट सिस्टम बन गया। कहते हैं कि इस्लाम के अंदर 3 प्रकार के कास्ट सिस्टम बनाए गए। अब तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम बड़े बड़े तौर पर 3 प्रकार के लोगों बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि इसमें होता है अशरफ, अजलफ और अर्जल। कहते हैं कि अशरफ, नाम से पता चल रहा है, अशरफ, अशरफी, स्वर्ण मुद्रा को अशरफी बोलते हैं। तो अशरफ क्या हो गया, आज का जैसे बोलते हैं ना, स्वर्ण तबका हो गया। वो जैसे कि शेख और सैयद होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं खुद को, वो अशरफ होते हैं। और अजलफ क्या होते हैं, अजलफ होते हैं आर्टिसन। आर्टिसन मतलब कारीगर, इसमें दर्जी आ जाएंगे, मकान बनाने वाले, राजमिस्त्री हो जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे, मटके बनाने वाले, सभी बुनकर, हर एक आदमी जो भी कारीगर है वो अजलफ होंगे। लेकिन अर्जल कौन होंगे, अर्जल होंगे जो मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हैं, वो लोग होंगे अर्जल। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडर्न वैल्यू सिस्टम। मॉडर्न वैल्यू सिस्टम 1757 में जब बंगाल के नवाब को ब्रिटिश सेना ने वो प्लासी के युद्ध में हराया और बंगाल पर उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो उसके बाद में मॉडर्न वैल्यू सिस्टम की हम शुरुआत मानते हैं वहाँ से। वो इसलिए मानते हैं कि मॉडर्न वैल्यू सिस्टम, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो किससे थे, साइंटिफिक टेम्पर पर बात करते थे। उनमें अंधविश्वास जैसी चीज़ें बहुत ही कम थी। वो रिलीजियस थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं थे, वो साइंटिफिक टेम्पर पर ज़्यादा यकीन करते थे। तो कहते हैं कि साइंस से टेक्नोलॉजी से क्या है, टेलीग्राफ, रेलवे, मैप्स, ये सभी ब्रिटिशर से लेकर आए थे। तो यही तो है टेक्नोलॉजी, यही तो है साइंटिफिक टेम्पर है, इसी से बात कर रहे हैं। रैशनलिटी और ये सब चीज़ों ने क्या पता है क्या किया था, भारत में रैशनलिटी को बढ़ावा दिया था। साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिक प्लस रीज़न, हर एक चीज़ के पीछे के लॉजिक और रीज़न की बात करने लग गए फिर। और फिर भारत में शुरुआत होती है लॉ, एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस और सिविल सर्विसेज। आगे हम पढ़ते हैं, इसके साथ ही हम हिंदू वैल्यू सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं कि इसमें क्या होता था। तो सबसे नीचे लिखा गया है कि ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या होता है, वर्ण व्यवस्था होती है, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या होती है, यहाँ कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, लेटर ऋग्वेदिक टाइम में पीरियड, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था होती है। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था आ जाती है। फिर आता है मौर्यंस, फिर आता है पोस्ट मौर्यन, फिर आता है गुप्ता। और गुप्ता के दौरान क्या होता है, जाति व्यवस्था अपने पीक पर होती है। फिर भी इसे क्या बोलते हैं लोग, स्वर्णिम काल बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, हमें क्या करना, कोई कुछ भी बोले। तो हम पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी, हिंदू वैल्यू सिस्टम, इस्लामिक वैल्यू सिस्टम और मॉडर्न वैल्यू सिस्टम। तो ये वैल्यू सिस्टम क्या कर देते हैं हमें, इनसे ये वैल्यू सिस्टम है, इससे बनता है क्या, ये किसको करते हैं, इनसे डिफाइन होता है कल्चर।
हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वैल्यूज़ बदलते हैं तो कल्चर उसके अकॉर्डिंग बदलता है। तो हिंदू वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कल्चर C1 हो गया, इस्लामिक वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया C2 हो गया, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग था C3 हो गया। C1 और C2 यानी कि हिंदू वैल्यू सिस्टम और इस्लामिक वैल्यू सिस्टम, दे आर ट्रेडिशनल कल्चर, बट modern value system gives C3, that is the modern culture. That is the modern culture. फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो अब हम क्या करते हैं कि इंडियन सोसाइटी है उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो लिखते हैं कि यहाँ पर इंडियन सोसाइटी इवॉल्व्ड इन 3 phases गिविंग इट यूनिक कल्चर। दे आर को एक्जिस्टेड with each other, making Indian society diverse and composite in nature. Indian culture is unique itself because, unlike other civilization, Mesopotamia, like Mesopotamia, Greek, Roman, there is no continuity from the past to future. ठीक है, तो कहते हैं कि इंडियन जो कल्चर है ना वो यूनिक है। इसके यूनिक होने के पीछे वजह ये है कि ये लंबे टाइम से सस्टेन कर रहा है, यूनिक इटसेल्फ बिकॉज अनलाइक अदर सिविलाइजेशन। तो ये सभी जो यूनिक इसलिए क्योंकि मेसोपोटामिया, ग्रीक, रोमन, ये सभी जो भी कल सिविलाइजेशन थी वो कंटिन्यू नहीं रही, लेकिन इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी के साथ चल रही है। एक लंबे वक्त से लगातार चल रही है ये सोसाइटी, इसीलिए। which have lost their past, but the Indian society maintained its past to till now. Reason for continuity, as Indian society is highly assimilative and accommodative. यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है, एंड टॉलरेंट इन नेचर। उसकी नेचर है टॉलरेंट करने की। एग्जाम्पल ऑफ असिमिलेटिव, व्हेन द एंशियंट चाइनीज ट्राइब्स अटैक ऑन इंडिया। बिल्कुल, जैसे कुषाण भारत में आए, और वो असिमिलेटिव कैसे हुआ कि कुषाण कौन थे? कहते हैं कि वो चाइनीज ट्राइब थी। हाँ, वो चाइनीज थे, चाइना से फिर वो मध्य एशिया की तरफ आए, फिर मध्य एशिया नहीं मान सकते थे, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर से ऊपर वाले वो किर्गिस्तान है ना, उनमें मान सकते हैं ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और वहाँ से फिर क्या हुआ सीधा ये जो अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हिंदू कुश से होते हुए भारत में एंटर कर गए, और यहाँ आकर उन लोगों का क्या हुआ, असिमिलेटिव, यानी कि उन्होंने अपने कल्चर छोड़ दिया और यहाँ की वैल्यूज़ को उसने अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि कुषाणों का जो सुप्रसिद्ध राजा बोलते हैं कनिष्क, उसने क्या किया था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, और कनिष्क का जो पिता था उसने, कहते हैं कि वो सूर्य का उपासक बन गया था, और उसका बेटा था कनिष्क का, वो वापिस से फिर से कुछ सूर्य या हिंदू देवी देवताओं का उपासक था, फिर वापिस कोई कनिष्क आगे फिर से कोई और आता, वो फिर से बुद्ध का उपासक था। इस प्रकार से चलता रहा ये सिस्टम। और कहते हैं कि कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी कश्मीर कुंडलवन में। तो ऐसे ही कुछ कारण है कि जिसकी वजह से ये सभ्यता हजारों सालों से बनी है। इसकी नेचर है टॉलरेंट नेचर, असिमिलेटिव नेचर। हाँ, एक और इंडो ग्रीक दैट ग्रीक्स वांट्स टू सेटल इन इंडिया, गिविंग आर्ट गांधार आर्ट। जैसे कि कहते हैं कि हम जानते हैं कि गांधार आर्ट में जो बुद्धा की स्टैचूज मिलती है वो ग्रीक स्टाइल से बहुत ज़्यादा वो है, प्रभावित है। और जैसे कि इन जो एक इंडो ग्रीक किंग था जिसका नाम था मिनांडर, उसने क्या किया था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उसके साथ में एक जो किसी बौद्ध संत का एक विचार विमर्श का है, तो उसे बोलते हैं मिलिंद पनहो, बोलते हैं। पनहो का मतलब पर्सन,
मिलिंद के साथ पर्सन या मिलिंद की पर्सन, इस प्रकार से कुछ होगा उसका टाइटल। तो मिलिंद पन्ना बोलते हैं, वो पाली के अंदर होगा या आज के समय तो सभी लैंग्वेजेस के अंदर हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है, पता नहीं है वो। लेकिन जो मिनांडर था वो यूनानी राजा था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल टॉलरेंट का। टॉलरेंट कैसे करती है इंडियन सोसाइटी? तो उसका एग्जाम्पल है ये टॉलरेंट करना कि इस्लाम वाज अलाउड टू फ्लोरिश अलॉन्ग विद हिंदुइज्म। जैसे कि इस्लामिक रूलर्स आए इंडिया के अंदर और उन्होंने उनका जो इस्लाम था वो हिंदुइज्म के साथ में बहने लग गया, फ्लोरिश अलॉन्ग विद हिंदुइज्म चलने लग गया। ये टॉलरेंट करने वाली नेचर है इंडियन सोसाइटी की, इंडियन कल्चर की, जिसकी वजह से वो अभी तक टिका हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्लास एंड कास्ट विल को एग्जिस्ट। क्लास और कास्ट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। हम जानते हैं कि क्लास इंसान की चेंज हो जाती है पर कास्ट चेंज नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं कि इस्लामिक इंडियन सोसाइटी इज लार्जली पेट्राइकल, हाउएवर देयर इज मेट्राइकल इन सम प्लेसेस लाइक खासी ट्राइब, नायर इन केरला। Yes, of course, that Khasi and Khasi tribe of Meghalaya and Nayar of Kerala are the matriarchal. But today we know that the Nayars are become patriarchal, but Khasi remain their culture matriarchal, and largely Indian society is patriarchal. After that, we talk about unity in diversity. Unity in diversity through unique model of secularism. Unity in diversity through the unique model of secularism. The Constitution of India and national flag, feeling of nationalism. That will bind all the people of India. The Constitution of India, national flag and feeling of nationalism, they bind the people of इंडिया। भारत के लोगों को ये सभी भावनाएं जोड़ती है, भारत का संविधान जोड़ता है, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है वो जोड़ता है, और भारत के लिए जो राष्ट्रीयता की भावना है वो भी देश के लोगों को जोड़ती है। और इसके बाद हम बात करते हैं द यूनिक एंड डाइवर्स किनशिप सिस्टम। बिल्कुल, यहाँ का जो यूनिक और डाइवर्स किनशिप सिस्टम है वो है अलग तरीके का है। हम जानते हैं कि जैसे कि ब्लड एंड मैरिजेज किनशिप सिस्टम, दिस सिस्टम that marriages are allowed in not allowed in their own gotra, and some other gotras are also, but in in the in the in the first cousin they does not allowed to marry like this, all these things. नॉर्थ इंडियन किनशिप सिस्टम, आफ्टर दैट तो भारत में कई तरीके के किनशिप सिस्टम चलते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडियन किनशिप सिस्टम, साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम, सेंट्रल इंडियन किनशिप सिस्टम और वेस्टर्न इंडियन किनशिप सिस्टम, ईस्टर्न इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन के साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडियन भी। आगे हम बात करते हैं कि ट्रेडिशन अलोंग विद मॉडर्निटी, Indians are also born for modernization of Indian tradition. लगातार मॉडर्न बनाते जा रहे हैं, ये तो हमें दिख ही रहा है। चलो अब हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। इंडियन सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम, तो हम सभी लोग इस चीज़ से हम अच्छी तरह भली भांति हम इससे फेमिलियर है। Difference between the varna and caste. Varna are the theoretical model. Varna are theoretical model of
division of labor like Sudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana. Sudra provide service provider, Vaishya are merchant class, Kshatriya are warrior class, Brahmins are the priest class. After that, in the caste, the field view or ground reality, yes sir, they are different. Caste system, there are so much castes and their ground reality and field view, all these we discuss further. After that, okay, it was present during ऋग्वेदिक पीरियड. जो वर्ण था वो ऋग्वेदिक पीरियड में प्रेजेंट, वो मतलब कि अस्तित्व में आया था. इट विल अलाउड मोबिलिटी, और वर्ण सिस्टम मोबिलिटी को अलाउ करता था. और कास्ट सिस्टम उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर अस्तित्व में आया. और ये क्या करता है कि मोबिलिटी को अलाउ नहीं करता है, पर मोबिलिटी कुछ एक टर्म्स में अलाउ हो जाती है. जैसे किन टर्म्स में? मोबिलिटी अलाउड इन संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन के जरिए मोबिलिटी को अलाउ कर दिया जाता है इसमें. नो कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी. वर्ण सिस्टम के अंदर कोई सिस्टम नहीं था कि अनटचेबिलिटी का, पर अनटचेबिलिटी इन गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के दौरान ही अनटचेबिलिटी आई थी. कास्ट सिस्टम गुप्ता से काफ़ी पहले आ जाता है उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ही आ जाता है. आगे लिखते हैं कि वर्णा टॉक्स अबाउट differences like equal status. वर्णा कहते हैं कि शूद्रा, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण and all these have equal status. But in the caste based on the hierarchy, the status difference, that the Brahmins have the superior status, after that Kshatriya, after that Vaishya, after that Shudra, after that Dalits, like all these things. फिर उसके बाद में बात करते हैं हम आगे कि कास्ट सिस्टम, द रीजनल वेरिएशंस भी आते हैं कास्ट सिस्टम के, बिल्कुल आते हैं. और कॉम्प्लेक्स कास्ट हैव द मल्टीपल सब कास्ट, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गया ना, क्योंकि एक पहले तो बहुत सारी कास्ट है और उसके बाद में बहुत सारी क्या हो गई, सब कास्ट भी आ गई. उसके बाद में आगे बात करते हैं कि कास्ट हैज़ रिस्ट्रिक्शन, कास्ट रूल्स. Okay, fine. Now we talk about caste system. तो कास्ट सिस्टम, कास्ट के बारे में कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अरेंज्ड ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर क्राइटेरिया. और कास्ट सिस्टम का क्राइटेरिया क्या होता है? कहते हैं कि इसका क्राइटेरिया है प्योरिटी और पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है. पॉल्यूशन का मतलब है कि जो लोग जिस प्रकार के काम से जुड़े होते हैं तो उसमें जुड़ी हुई कि वो कितना काम शुद्ध है, कितना काम पॉल्यूटेड है, उससे जुड़ा हुआ है ये क्राइटेरिया. कास्ट इज क्लोजर टू प्योरिटी एंड प्योरिटी. कास्ट इज क्लोजर टू प्योरिटी आर कंसिडर एज अपर क्लास. जो लोग प्योरिटी से क्लास्ड टू इज क्लोजर टू प्योरिटी आर कंसिडर एज upper class. Caste closer to pollution they consider as a lower caste. ये मेरे सबसे गलती का, मैंने अपर क्लास नहीं, कास्ट, ये भी गलत है, यहाँ पर भी कास्ट होना चाहिए. ठीक है, चलते हैं तो आगे. तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है कि जैसे कि ये बात करते हैं कि अनटचेबल दलित्स, अनटचेबल शूद्रा, वैश्या,
क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, अनटचेबल, अनटचेबल पॉलिटिक वर्क। तो वो लोग क्या जुड़े हुए हैं किससे? देख, जैसे कि ये अनटचेबल और शूद्र दोनों दोनों कौन है? लेबर क्लास है। लेकिन लेबर क्लास के अंदर भी जो अनटचेबल्स है वो जुड़े हुए हैं किससे? पॉलिटिक वर्क से, द क्लीनिंग, स्वीपिंग, लेदर इंडस्ट्री और मैनुअल स्क्वेंजिंग। लेकिन जो जो शूद्र है वो किससे जुड़े हुए हैं? वो लोग हैं या तो आर्टिसन से या पीजेंट से। और वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण बोलते हैं कि ये अपर क्लास है, अपर कास्ट है, अपर कास्ट, अपर क्लास लिखते हैं कि अपर कास्ट लिखते हैं, इसको पता नहीं क्या लिखा है, अपर कास्ट लिखना चाहिए इसके लिए, जो भी है छोड़ो। तो ये लोग जुड़े होते हैं प्योरिटी से, ठीक है। और कहते हैं कि ये लोग हैं ट्वाइस बोर्न। ट्वाइस कैसे हैं? कहते हैं कि ये लोग एक तो नेचुरली, जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है वैसे पैदा हो गई, और उसके बाद में इनका एक बार से फिर से जन्म होता है, उसे क्या बोलते हैं? जनेऊ संस्कार बोलते हैं। जैसे कि स्कैर्ड बर्थ थ्रीड, जिन्हें जो थ्रीड पहनते हैं ना, जनेऊ पहनते हैं, वो पहनते हैं तब उनका एक दोबारा जन्म होता है, ठीक है, ये है। और हमें ये पता है कि जो वैश्य होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं वो क्या होते हैं? वो वॉरियर्स होते हैं, ब्राह्मण्स प्रिस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लोग तीनों के तीनों हैं, जहाँ जो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण्स, वो तीन अलग अलग तरीके की जनेऊ पहनते हैं। थ्रीड वो अलग अलग तरीके के पहनते हैं। जैसे कि ब्राह्मण्स है वो कॉटन थ्रीड पहनते हैं, कॉटन थ्रीड पहन ली, सूती सूती सूत की जनेऊ। और उसके बाद में आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय पहनते हैं सिल्क की थ्रीड पहनते हैं। और वैश्य पहनते हैं जूट की थ्रीड पहनते हैं, जूट की से बनी हुई जनेऊ पहनते हैं वैश्य, ठीक है, याद हुआ ना? कॉटन थ्रीड कौन पहनते हैं? ब्राह्मण पहनते हैं। जूट थ्रीड कौन पहनते हैं? वैश्य पहनते हैं। और पीछे कौन रहेगी? सिल्क थ्रीड। सिल्क थ्रीड है वो कौन पहनते हैं? क्षत्रिय पहनते हैं, वॉरियर्स पहनते हैं। तो अब बात करते हैं प्योरिटी और पॉल्यूशन दोनों के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ प्योरिटी, तो क्या है प्योरिटी के? क्या एलिमेंट्स है? कहते हैं कि द मेनली एसोसिएटेड विद क्लीनलीनेस, वो क्लीनलीनेस से जुड़े रहते हैं। और वेजिटेबल फूड्स खाते हैं, वो घी काम में लेते हैं, वो गाय की पूजा करते हैं। वियरिंग स्कैर्ड थ्रीड, ठीक है। और एक और बात है जिसमें प्योरिटी के साथ में ये बातें आती है कि इन लोगों के अंदर ये ज़्यादा होती है ऐसी बातें। कैसी बातें? कि उनकी जो लेडीज़ है वो क्या करती हैं, पीरियड्स के दौरान काम नहीं कर सकती, रसोई में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार के ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं जो लोग प्योरिटी के साथ में ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं उन लोगों के साथ में। लेकिन अब बात करते हैं हम पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन क्या लिखते हैं? पॉल्यूशन के बारे में लिखा है कि any contact with feces, nail, fecus, any contact with fecus, nails, sweat, urine, blood, तो वो इन चीज़ों के साथ में सीधा जो कांटेक्ट में रहते हैं वो पॉल्यूटेड है, सीधी सी बात है, दिख रहा है। और क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। अल्कोहल पीते हैं लोग, ये लोग जो पॉल्यूटेड हो जाते हैं वही अल्कोहल। और ये लोग बीफ खाते हैं। और नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन, और इनकी वुमेन्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, दे कैन वर्क आउटसाइड हाउस। आगे हम पढ़ते हैं कि सेपरेशन बिटवीन द इनपुट इम्प्योर एंड प्योर एंश्योर थ्रू by the caste rule and regulation. Pure, impure and pure ensure through by caste rule and regulation. Impurity is transferable and transfer by touch, and hence pure will be separated from impure. Impurity is transferable
कहते हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो ट्रांसफरेबल है and transfer by touch, and hence pure will be separated from impure. तो चूंकि है कि इम्प्योरिटी है वो ट्रांसफरेबल है और वो सिर्फ टच करने से भी ट्रांसफ़र हो सकती है, प्योरिटी ऐसी नहीं है। इसलिए जो प्योर इसलिए प्योर विल बी सेपरेट फ्रॉम इम्प्योर। फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कि हम कास्ट रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम की फीचर्स के बारे में बात करने की बात यही है। तो हम बात करते हैं हायरार्की। हायरार्की के बारे में बात करेंगे तो लिखा है कि इसमें अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर क्रिएट्स इनइक्वलिटी इन सोसाइटी, स्टेटस डिफरेंस। अब सेकंड पॉइंट होता है, इसमें आता है ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन, नो चेंज फिक्स्ड, देयर ऑक्यूपेशन इज डज नॉट चेंज। ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिक्स है। बाय बर्थ हेरिडिटरी आनुवंशिक रूप से, मतलब कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, वो फिक्स हो गया है जो ऑक्यूपेशन है वो। मोबिलिटी इज नॉट अलाउड, क्लोज सोसाइटी क्लोज कर दी इसको, ठीक है। मोबिलिटी इज नॉट अलाउड, क्लोज सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड के बारे में। तो थर्ड के बारे में क्या लिखा है? तो थर्ड के बारे में यहाँ लिखा है कि एंडोगेमी मैरिज शुड हैपन विद इन सेम कास्ट। एंडोगेमी इन द कास्ट, एक्सोगेमी endogamy in the caste, endogamy and exogamy after the sub gotra, like that, and the subcaste. The endogamy, the marriages should happen within the same caste. Dr. B.R. Ambedkar considered this factor as the most important factor for the continuity of caste. डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि ये इसकी क्या है, ये इसकी वो है जो है ना कास्ट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है एंडोगेमी। एक ही जाति के अंदर लगातार उसका विवाह होना, इसकी वजह से जातियों का अस्तित्व लगातार लंबे समय से बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब क्या होता है? अनुलोम का मतलब है कि अपर कास्ट बॉय अगर वो क्या करता है, शादी करता है किसके साथ में, लोअर कास्ट गर्ल के साथ में, तो ये अनुलोम है। इसे बोलते हैं विधि सम्मत विवाह। प्रतिलोम क्या होता है कि अपर कास्ट गर्ल व्हेन मैरी विद द लोअर कास्ट बॉय, दिस कॉल्ड प्रतिलोम विवाह। ओके फाइन, नाउ वी स्टार्ट फर्दर that fourth point, that is civic limited, no access of the community resources like wells, bathing huts, grazing ground, cremation ground। तो ये हमें पता ही है, जैसे कि ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई जगह होता है कि क्रिमेशन ग्राउंड सभी लोगों का सेम होता है, उसके बारे में बात होती है।